کہ اللہ نے حضرت علی کو کتنے علوم سے نوازا، کتنا علم عطا فرمایا، یہ کہنا سل ما شئت۔ جبریل آ گئے امتحان لینے کے لیے انسانی شکل میں، کہا جبریل نے علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ علی نے آنکھوں کو بند کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں سر کو اٹھایا اوپر نیچے، تھوڑی دیر آنکھوں کو کھولنے کے بعد کہا ہم نے پوری کائنات میں دیکھ ڈالا، ہمیں جبریل کہیں نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ تو ہی جبریل ہے۔ کہتے بولے سبحان اللہ، ہاں لگتا ہے تو ہی جبریل ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ قاضی چکے مسلمانوں، حضرت علی علی ہے لیکن غلام مصطفیٰ ہے، جب غلام مصطفیٰ کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کا امام ہے اس نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اس رسول کی نگاہ کا عالم نعرہ تکبیر، اور زور سے بولیے بھائی، تقریر ہو رہی ہے، تقریر چلہ چلنے کا نام تقریر نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھے ذرا محبت سے بولو۔ اللہ فرماتا ہر چیز کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا ذکر قرآن۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا بعض صحابہ کو تو اللہ نے قرآن پر اتنا علوم، اتنا علم اللہ نے قرآن کا عطا فرمایا تھا کہ بعض صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پنکھوں کی رسیاں گم ہو جاتی تو ہم اسے قرآن میں ڈھونڈ لیتے۔ یہ ان کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹوں کی رسیاں قرآن میں ڈھونڈ لیتے۔ کیوں نہ ڈھونڈے؟ اللہ فرماتا ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور یہ پاگل خامر بولتا ہے قرآن میں یہ کہاں، اگر ہے قرآن میں تو یہ کہاں لکھا ہے، یہ جلسہ کہاں ہے، گیارہی کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا ہے قرآن میں، قرآن میں ہے۔ کوئی اگر سمندر سے موتی نکالنا چاہے تو اوپر سے تیر کر کے موتی نہیں نکلنے والی، اسے اندر جانا پڑے گا، جتنا اندر جاؤ گے اتنی ہی موتیاں ملیں گے۔ خالی قرآن پڑھ کر کے کوئی سمجھے کہ ہمیں یہ نظر آ جائے وہ نظر آ جائے، کچھ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے افلا تعقلون افلا تدبرون، قرآن میں غور کرو، فکر کرو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر کتنی علم کے موتیوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، کتنے علم کے موتیوں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ابو سفیان حضرت سفیان ثوری وہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم اللہ نے 30 پارے میں رکھے ہیں، ساری کائنات کو سمیٹ کر اللہ نے 30 پارے میں رکھے ہیں، اور 30 پاروں کو سمیٹ کر اللہ نے سورہ یاسین میں رکھ دیا۔ سورہ یاسین کا سارا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا۔ پورے بسم اللہ کا علم اللہ نے بسم اللہ کے باب میں رکھا، پورے باب کا علم اللہ نے باب کے نیچے والے چھوٹے سے نقطے میں رکھا۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ کائنات جب سمٹ گیا تو سمٹتے 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 یہ چھوٹا سا نقطہ بن گیا۔ یہ نہیں ہوا؟ کائنات سمٹی 30 پارے ہو گئے، 30 پارہ سمٹا سورہ یاسین بن گیا، سورہ یاسین سمٹا سورہ فاتحہ بن گیا، سورہ فاتحہ سمٹا بسم اللہ بن گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹا بسم اللہ کی با بن گیا، بسم اللہ کی با سمٹا تو وہ با کے نیچے والا نقطہ بن گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھ نقطے کو اگر تھوڑا سا پھیلاؤ تو وہ با بن جائے، با کو پھیلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو آپ نے پھیلا دیا تو وہ سورہ فاتحہ بن گئی، سورہ فاتحہ کو آپ نے پھیلایا، سورہ یاسین کو آپ نے پھیلایا، 30 پارے اور 30 پارے کو آپ نے پھیلا دیا، ساری کائنات بن گئی۔ یہی نہ ہوا بھائی، یہی نہ ہوا۔ اب پاگل بولتا ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ نور مجسم صاحب پورے ہندوستان میں حضرت کا دورہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کئی چینل والے ہیں، 5-6 چینل والے ہیں۔ اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جلسے کے کارکنان ہوتے ہیں اپنے جلسے کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے وہ جلسے کو محفوظ کر لیتے ہیں ایک ڈی وی ڈی کیسٹ میں، ایک ڈی وی ڈی کیسٹ میں۔ تو ایک ڈی وی ڈی میں ایک کیسٹ میں کبھی مظفر پور کا جلسہ ہے، کبھی چمپارن کا جلسہ ہے، کبھی نوتنوا کا جلسہ ہے، کبھی بہار کا جلسہ ہے، یو پی کا جلسہ ہے، جھارکھنڈ کا، بہار کا، ہر جگہ کا جلسہ۔ کئی جگہوں کے جلسے کو ایک ڈی وی ڈی میں قید کیا گیا اور وہ ڈی وی ڈی میں نے لیا۔ ڈی وی ڈی
कैसेट समझ रहे हैं? अब तो DVD खत्म हो गया, ये तो एक हाथ की मोबाइल आ गई ना, ये मोबाइल में DVD और CD DVD सब खत्म कर दिया। पहले के आज से 10 साल 15 साल पहले अपने जहन को ले जाए, एक DVD कैसेट में लिया, यहाँ वहाँ के जलसे को उस कैसेट में महफूज किया गया। जस्ट हसनपुर का ये कॉन्फ्रेंस है, ये काजी चक का जलसा है, मुजफ्फरपुर का जलसा है, और मालदा का जलसा है, बंगाल का जलसा है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, हर जगह के जलसे को कैच किया गया, महफूज किया गया। एक जाहिल किस्म के आदमी को मैंने, अनपढ़ किस्म के आदमी को मैंने बुलाया, हमने कहा कि ये CD लो, ये DVD लो। कहा ये क्या है? हमने कहा इसको लो, इसमें मुजफ्फरपुर है, इसमें बांग्लादेश है, इसमें यूपी है, इसमें बिहार है, इसमें आंध्रा है। वो लिया, उलट पलट करके देखा, और देखने के बाद कहा मौलाना, हमने कहा फरमाना। उसने कहा या तो आप पागल हो या फिर हमें पागल समझ रहे हो। हमने कहा मतलब हो, इसमें काजी चक का जलसा है, आप कहते हो इसमें गोरखपुर है, आप कहते हो इसमें चंपारण है, आप कहते हो इसमें मुजफ्फरपुर है, आप कहते हो इसमें बिहार है, झारखंड है, यूपी है, आंध्रा है, कर्नाटक है। हमें तो कुछ नजर नहीं आता। हमने कहा नजर क्या आता है? कहा हमें तो सिर्फ कुछ तहरीरें नजर आती हैं, कुछ नंबर्स नजर आते हैं, हमें और कुछ नजर नहीं आता। हमने कहा तुम्हें इसलिए नजर नहीं आता कि तू सिर्फ DVD को देख रहा है। हमने कहा इस DVD को लो, DVD प्लेयर में डालो, और फिर उसके बाद स्क्रीन पर देखो तो तुम्हें जसपुर भी नजर आएगा, हसनपुरा भी नजर आएगा, काजी चक भी नजर आएगा, तुम्हें मुजफ्फरपुर भी नजर आएगा, यूपी भी नजर आएगा, बिहार भी नजर आएगा। उसने कहा ये DVD प्लेयर किस बला का नाम है? हमने कहा नहीं पता है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। आप तुम पागल कहते हैं, कुरान में ये कहा है, कुरान में वो कहा है, कुरान में ये कहा है। हमने कहा नादा तू सिर्फ कुरान को देख रहा है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। इस कुरान को सीधे मुस्तफा में डाल, मिशकात के नबूवत की स्क्रीन पर दे, तुम्हें कायनात का जर्रा जर्रा नजर आएगा, ज़मीन का जर्रा जर्रा नजर आएगा। आरे तकबीर, आरे रिसालत, सरकारे हसनपुरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मौलाना साबिरुल कादरी साहब, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। जी लग रहा है कि तकबीर खत्म करेगा, मेरा वक्त भी होता जा रहा है। जरा मोहब्बत से बोलो। हाँ? कुरान के उलूम को समझने के लिए निस्बत मुस्तफा का होना जरूरी है, इसलिए कि कुरान डायरेक्ट ये तुम्हारे ऊपर नाज़िल नहीं हुआ। कुरान तो मुस्तफा के वसीले से हमें मिला है। कुरान तुम्हारे ऊपर नाज़िल होता तो तुम खाक हो जाते। अल्लाह फरमाता है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर हमने कुरान को पहाड़ों पर भी नाज़िल किया होता तो पहाड़ अल्लाह के कलाम के गज़ब और उसके जलाल से वो तबाह बर्बाद हो जाता। बात ये समझ में आई? अल्लाह के कलाम में इतना जलाल, अल्लाह के कलाम में इतना जलाल कि पहाड़ भी बर्दाश्त न कर पाए। लेकिन काजी चक के मुसलमानों, अभी 10वें दस्तारबंदी होगी, 10 साल 12 साल के बच्चे जो अपने सीने में कुरान को महफूज किए हुए हैं, प्यार से बोलो। दुनिया में और कोई मजहब नहीं है जो अपनी मजहबी किताबों का हाफिज हो। ये इस्लाम ही है जिसके हजारों करोड़ों लाखों अरबों हाफिज आपको मिल जाए। एक अल्लाह ने फरमाया ना, इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो हिफाजत का एक तरीका ये भी है कि अल्लाह ने इस कुरान को आसान फरमा दिया। लोग याद करें तो सीने में महफूज हो जाता है, महफूज हो जाता। एक हिफाजत का तरीका ये भी है। अब जरा गौर करें, अल्लाह के कलाम में जलाल इतना कि अगर पहाड़ों पर नाजिल होता पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ों पर नाजिल होता पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाता। लेकिन वही कुरान आज हमारे मदरसे के 10 साल 12 साल के बच्चे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। तो जो असर पहाड़ों पर होता है वो असर इन बच्चों के सीनों पर क्यों नहीं होता? सवाल समझ में आया? कुरान को अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जो असर पहाड़ों पर होता, बच्चों का
सीना तो पहाड़ से बहुत ही नरमो नाजुक है, छोटा सा दिल है, लेकिन जो असर पहाड़ों पर हो रहा है वो असर इन बच्चों के सीने पर क्यों नहीं? 8 साल 10 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान हो जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? तो आप वजह समझो। मिसाल के तौर पर आपके काजी चक में मुजफ्फरपुर में शिद्दत की गर्मी हो, सूरज बिल्कुल अपने आबोताब के साथ हो, ऐन दोपहर में जब बिल्कुल शबाब पर सूरज हो, अगर आप उसे डायरेक्ट देखना चाहें तो क्या आप देख सकते हैं? सर को हिला डुला करके बताएं जो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते। देख सकते हैं? बोलो भाई, नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि हम अगर सूरज को देखते हैं तो हमारी नजरें सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, नजरें झुक जाती है। क्यों? इसलिए कि सूरज की रोशनी में जलाल है, हमारी आंखें उस जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जब रात का वक्त होता है तो उसी रोशनी को चांद के वसीले से जब हम देखते हैं, उसी रोशनी को जब रात में चांद के वसीले से देखते हैं तो हमारी आंखों को सुकून मिलता है, हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, हमारी आंखों को राहत मिलती है। डायरेक्ट अगर देखते हैं तो आंखें हमारी ठहर नहीं पाती, लेकिन जब चांद का वसीला होता है तो हमारी आंखें पुरसुकून हो जाती हैं, हम बड़े आराम से चांद को देख लेते हैं। क्यों? इसलिए कि सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को मुनीर कहते हैं, चांद को मुस्तनीर कहते हैं, सूरज की रोशनी को ज़िया कहते हैं, चांद की रोशनी को नूर कहते हैं। सूरज की रोशनी में जलाल है, चांद की रोशनी में जमाल है। जब सूरज की जलाल वाली रोशनी चांद के जमाल वाले सीने पर पड़ती है, जब सूरज की जलाली रोशनी चांद के जमाली सीने पर पड़ती है और चांद के वसीले से जब उस रोशनी को हम देखते हैं, हमारे आंखों में ठंडक महसूस होती है, हमारी आंखों को राहत मिला करती है। अगर आप है तो अब ये समझो, अल्लाह का कलाम जलाल वाला है, मेरे आका का सीना जमाल वाला है। ऐसे नहीं, मोहब्बत के इजहार करो, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम में जलाल, मेरे आका के सीने में जमाल है। अल्लाह का कलाम जलाली है, मेरे मुस्तफा का सीना जमाली है। जब अल्लाह का जलाल वाला कलाम मेरे आका के जमाल वाले सीने पे पड़ता है, अल्लाह का जलाली कलाम जब अल्लाह का जलाली कलाम मुस्तफा के जमाली सीने पर पड़ता है और उसके वसीले से जब हमारे 10 साल के बच्चे उस कुरान को हासिल करते हैं सीने मुस्तफा के वसीले से, और जब कुरान पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है, दिल को करार मिलता है। हमने कहा ना था, तू कहता है कुरान में ये नहीं है, कुरान में वो नहीं है। हमने कहा तो ये कुरान तुझ पर नाज़िल नहीं हुआ, कुरान के उलूम को जानना चाहते हो तो सीने मुस्तफा का वसीला बनाओ, तुम्हें अल्लाह कुरान